we have learned a third chapter. I hope you have understand what is meant by noun and all things. Now we are going to learn, students, our fourth chapters, and your chapter name is verb, subject, verb, and agreement. Okay, you know that students, what is mean by subject. Subject means nothing but a person what is saying in the sentence is known as the subject. It means that if if I speak of one sentence, my mother is a best teacher. Okay, my mother is a best teacher. In this sentence you can understand my mother. My mother, if I ask questions, who is the best teacher, then answers of these questions is my mother. So you know that, students, my mother is a subject. Okay, so in this chapter we are going to learn what is mean by subject, what is the verb, and what is the verb agreement. Okay, so let's start our chapter today. Let's learn subject and verb agreement. Verb must agree with its subject in numbers. Okay, examples you can see here, students. What is the yes examples? A child likes candies. Okay, if I ask questions, who like candies, then you give me answer a child. So a child is, students, this is the subject. What, students? Yes, a child is the subject. This is the subject. Okay, now see, children here, children like candies. Okay, in this sentence here you can say here is the likes. It means that in verb में जो है एस लगा है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइक है, केवल वर्ब में एस नहीं लगा है. क्यों नहीं लगा है? कि चाइल्ड मीन्स अ पर्टिकुलर चाइल्ड के बारे में बात की जा रही थी, और यहाँ पे चिल्ड्रेन मीन्स बहुत सारे चिल्ड्रेन्स हैं, अनकाउंटेड मीन्स हमने गिनती नहीं किया है कितने बच्चे हैं. तो हम क्या हुआ, मतलब चाइल्ड का जो सिंपल सा हम एक बात बोले कि जो प्लूरल होता है वो होता है चिल्ड्रेन. Okay, students, so children and child is the subject, and like is the verb, and candy is the predicate. Okay, so here we can see a verb must also agree with its subject in a person. कि जो verb होता है, students, वो जो है क्या होता है, यस, वर्ब जो होता है वो एग्री होता है सब्जेक्ट इन अ पर्सन. जो भी पर्सन जो रहता है उसके साथ ये सब्जेक्ट जो है क्या करता है, एग्री हो जाता है. और मीन्स हम कह सकते हैं कि बिना वर्ब के, बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस हम नहीं बना सकते. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी एग्जाम्पल्स. हियर इज सम एग्जाम्पल्स. I am 12 years old. How many years old, students? 12 years old. Okay, so I is the subject. Yes, this one I is the subject, and am is the helping verb. Okay, and other parts is the predicate. Okay, so here we can say that, students, in second sentence, you are my best friend. In this sentence, you is the subject, are is the helping verb, and other parts is the predicate. Other parts is the verb agreement. Okay, now see here. Here choose the correct words. Yes, practice time on. You can see here. Choose the correct words given in the brackets. Okay, worms eat, eats these leaves, and ruins the plant. Worms eat these leaves and ruin the plants. So you have to make like this. Now students, see, sometimes it is difficult to tell whether the subject is singular or plural. Student, singular and plural is a very important. You have to know that what is the singular, what is mean by singular and plural. Student, singular means इसके मतलब जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, चाहे एक वस्तु हो, एक व्यक्ति हो, या फिर एक एनिमल्स हो, जब हम किसी भी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं
उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सिंगुलर। ओके, एक वचन हिंदी में बोले तो, ठीक है। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, सो आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, वन गर्ल एंड वन बॉय। बट when we are talking about more than two or two, then we can say that there is the plural subject। तो इस तरह से जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम, मोहन, प्रिंस एंड ऑल थिंग्स। मोहन, प्रिया, प्रियंका, ये सब एक जो है व्यक्ति के बारे में जो है वो क्या हुआ, जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर एक वचन हुआ। और जो प्लूरल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है जैसे बॉय है तो सिंगुलर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, बॉय, ठीक है, मीन्स हम एक बॉय की बात कर रहे हैं। एंड हियर इज द बॉयज। ओके, सो दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट एंड दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, समटाइम इट इज डिफ़िकल्ट टू टेल वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। कभी कभी हमें मतलब ये पता लगाना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। वी हैव टू हाउ टू अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट एंड दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। सो we can know that if you know that nouns like a singular noun, what is the singular and what is the, when you have to learn the definition and some you have to solve some examples, then you have yes, obviously you know that when you read, then we have to understand and then we have to find out which is the subject is singular and which is the plural। कौन सा जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, और कौन जो है वो प्लूरल है। ओके स्टूडेंट्स, now students time to see, yes, here two or more singular subject connected by and usually take a verb in a plural। yes, कभी कभी जो है दो जो है क्या होते हैं, दो या दो से जो है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन के द्वारा जो यूजली वो कनेक्ट होते हैं। टेक अ वर्ब इन द प्लूरल, और इसमें जो वर्ब होता है वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे आप यहाँ पे जो है एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स, राहुल एंड रवि आर हियर। राहुल एंड रवि जो है यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राहुल क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट है। क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट है। और राहुल जो है एक लड़के का नाम है, जाहिर सी बात है। तो एक लड़का है तो क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट्स, यस, क्या हुआ, यस, दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। राहुल इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, नाउ यू कैन सी एंड रवि आर हियर। अभी देखेंगे कि ये रवि भी है, यहाँ पे एक और जो है सब्जेक्ट आ गया और इसको हमने कनेक्ट किया है एंड से। तो अभी ये क्या हो गया, सेंटेंस जो है सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गए। मीन्स दो लोगों की बात की जा रही है इसमें, भले वो अलग अलग है लेकिन दो लोगों की बात की जा रही है। तो हमारा जो वर्ब होगा, ठीक है, वर्ब मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रिया, जो काम हम करते हैं, जो एक्शन हम करते हैं। इफ़ यस, इफ़ आई एम आस्क व्हाट आई एम डूइंग नाउ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो आप लोग को टीच कर रही हूँ। तो टीचिंग करना, पढ़ाना मेरा क्या है, एक कार्य है, काम है, एक्शन है। तो इस तरह से जो है ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे टू और जो है, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन या थिंग। जब दो नाउन जो है क्या करते हैं, सेम पर्सन या थिंग्स को रिफ़र करते हैं, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वर्ब होते हैं वो मस्ट बी सिंगुलर होने चाहिए। माई फ्रेंड एंड नेवर इज हियर। माई फ्रेंड, ओके, नॉट एनी वन फ्रेंड, माई फ्रेंड एंड नेवर इज हियर। मेरी फ्रेंड एंड जो नेवर कहाँ है, यहाँ पर हैं। तो इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स, यहाँ पे माई फ्रेंड और नेवर ये दोनों क्या है, सिंगुलर है। तो ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप, टू नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन, मीन्स माई फ्रेंड एंड नेबर्स, ये दोनों क्या करते हैं, मीन्स हमारे जो नेबर्स होते हैं उसमें ही फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो एक ही चीज़ को जब क्या करता है, रिफ़र करता है, उसको भी जो है फॉर एग्जाम्पल्स वो भी मस्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वर्ब है सिंगुलर है। माई फ्रेंड एंड नेवर इज जो है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ओके, सिंगुलर वर्ब।
इफ़ टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, अगर दो सब्जेक्ट जो है क्या है एक्सप्रेस करते हैं एक ही आइडिया को, द वर्ब मे बी द इन द सिंगुलर, तो ये वर्ब जो है मे बी जो है क्या हो सकता है सिंगुलर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज दैट सी हैड डिसाइड टू रिटर्न। इस तरह से जो है क्या स्टूडेंट्स होता है कि जो लॉन्ग एंड जो शॉर्ट जो है मैटर्स होते हैं, मैटर इज सी हैज डिसाइड टू रिटर्न। इस तरह से ये स्टूडेंट्स हो गए। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इफ द सब्जेक्ट इज प्रीसीड बाय ईच एंड आर एवरी, अगर सब्जेक्ट जो है में ईच लगा हो, ठीक है, मीन्स मान लो कोई सब्जेक्ट लिखा, उस सब्जेक्ट में सेंटेंस लिखा उसमें ईच से स्टार्ट हुआ हो या फिर एवरी से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, तो इस तरह से अगर इन सारी चीज़ों से स्टार्ट हुआ हो सब्जेक्ट ईच एंड एवरी, द वर्ब इज यूजली सिंगुलर, तो जो वर्ब होगा हमारा, और वर्ब तो पता ही है आपको, जो हेल्पिंग वर्ब एक होता है और एक जो होता है मेन वर्ब होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है स्टूडेंट्स वो होता है इज, एम, आर एंड ऑल थिंग्स। ओके, सो यू कैन सी हियर एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वर प्रेजेंट इन द गैदरिंग, मीन्स जो एक गैदरिंग हुआ था वहाँ पे हर एक जो है क्या मैन, वुमेन और बच्चे क्या थे प्रेजेंट थे। ओके, सो यू कैन सी हियर यस, ईच चाइल्ड वांट्स एन आइसक्रीम, ईच चाइल्ड हर एक बच्चे जो क्या चाहते थे आइसक्रीम चाहते थे। ओके, यस, हियर यू कैन सी टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट बाय और, नॉर, नाइदर, नॉर, आइदर और टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म, तीसरे से जो वर्ब होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर रीता नॉर आई वॉज प्रिपेयर्ड, ना ही रीता और ना ही जो है ना ही तो रीता और ना मैंने क्या किया प्रिपेयर किया, ठीक है, तो इसमें कोई भी नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो ये टू या मोर जो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं एक कंजक्शन से, लाइक अ कंजक्शन दिस इज द, और, नॉर, नाइदर, ये सारे कंजक्शन है, ठीक है, जो दो सेंटेंसेस को मतलब जो है जोड़ते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब को। व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइन और नॉर लाइक डिफरेंट पर्सन, द वर्ब्स एग्रीज इन द पर्सन विद द वन नियरेस्ट ऑफ टू इट। एग्जाम्पल्स, आइदर ही और आई एम द ब्लेम, मीन्स या तो वह या तो मैं क्या किए हूँ, यस ब्लेम है हुए। नाइदर अमित नॉर हिज फ्रेंड्स हैव सीन दैट मूवी, ना ही तो अमित और ना ही उसके फ्रेंड क्या किए मूवी को, यस हैव सीन द मूवी, देखे। ओके, नाउ सी व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर, जब भी सब्जेक्ट और या नॉर से ज्वाइन होते हैं ऑफ द डिफरेंट नंबर्स, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन नेक्स्ट टू द वर्ब। तो इसमें जो वर्ब होते हैं स्टूडेंट्स, वर्ब जो मस्ट बी प्लूरल, जो वर्ब होना चाहिए, जैसे ई जो है क्या है सिंगुलर है, जब जो है सब्जेक्ट जो है आई रहता है तो ये भी जो क्या हम एम लगाते हैं, ठीक है, और आई जो क्या है स्टूडेंट्स, यस आई जो होता है वो स्टूडेंट्स, आई जो होता है वो क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, और ऐसे जैसे जो है अभी मान लो यू हो गया, यू जो है क्या है सेकेंड पर्सन है, ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, yes students, you see here when subject differing in a number or a person or both are connected by and, the verb must always be in the plural. For example, means students, it means that students when सब्जेक्ट डिफरिंग इन अ नंबर्स मीन्स जो उनके जो नंबर्स और पर्सन होंगे बोथ कनेक्टेड बाय एंड, जो दोनों क्या होंगे कनेक्ट होंगे एड से, तो मस्ट वर्ब जो होगा मस्ट बी
ऑलवेज इन द प्लूरल। जो वर्ब होगा, जैसे हम इज लगाते हैं, इज जो सिंगुलर वर्ब होता है, आर जो होता है वो प्लूरल होता है। तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लूरल होगा। जैसे सी एंड आई आर प्लेइंग। जैसे सी देखेंगे स्टूडेंट तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, मीन्स एक की बात की जा रही है। और ये क्या है, जो सी है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। लेकिन ये जो देखेंगे स्टूडेंट्स, जो आई है यहाँ पे, वो आई जो स्टूडेंट्स, ये जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सॉरी, जो है ये आई जो स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये फर्स्ट पर्सन क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो प्लूरल नाउन जब भी आएगा तो हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, जो है हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा जो वर्ब होगा वो क्या आएंगे स्टूडेंट्स, यस प्लूरल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, आर लगाया है, ओके। उसके ना नेक्स्ट, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ अ होल। यस, एक जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन पता है ना आपको, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, ए ग्रुप ऑफ पीपल्स, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज नोन एज द कलेक्टिव नाउन, ओके। तो जब भी ये जो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कलेक्टिव नाउन होता है, ये रहा कलेक्टिव नाउन टेक्स अ singular collection in thoughts in a whole plural used in the where collection is thought separate. For examples, a number of members of the team we are absent. नंबर ऑफ टीम जो होते हैं स्टूडेंट्स, वर absent, सारे के सारे मेंबर्स क्या है, absent है। द ज्यूरी हैज एग्री टू आवर प्रपोजल। ये जूरी है वो हैज़ टू एग्री, वो क्या है, एग्री है टू एग्री द आवर प्रपोजल, हमारे प्रपोजल के लिए वो एग्री है। नाउन विच आर प्लूरल, जो भी नाउन जो होते हैं प्लूरल में होते हैं, इनफॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग, लेकिन उनके मीनिंग जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, टेक अ सिंगुलर वर्ब, तो उनसे वर्ब भी क्या लिया जाता है, सिंगुलर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, वर्ड्स ज्वाइन टू द सिंगुलर सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे स्टूडेंट्स, वो जो है ज्वाइन होंगे अलॉन्ग विथ से, टुगेदर से, एज वेल से, एज वेल एज से, और जो है सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर, इफ टू यहाँ पे देखेंगे कि इफ टू या फिर मोर जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट दो या दो से जो है अधिक होते हैं, आर प्रीसीड बाय द आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच, या फिर ये सारे जो है हम वर्ड्स लगा के फिर जो है सेंटेंसेस बनाते हैं। सिंगुलर फॉर एग्जाम्पल्स, एवरी वन ऑफ अस मीन्स, एवरी वन ऑफ अस मीन्स, अस मीन्स होता है हम लोग, यहाँ पे जो भी हम लोग जो है क्या हैं, इक्वल इन द आइज ऑफ द ऑलमाइटी, तो हम जो ऑलमाइटी मीन्स होता है गॉड के आँखों में क्या हम इक्वल हैं, जहाँ जितना भी यहाँ पे हैं वो सब ऑलमाइटी के आँखों में क्या इक्वल है। इस तरह से समबॉडी हैज ईटन द एप्पल, ओके, समबॉडी हैज ईटन, तो समबॉडी मीन्स कोई भी, ठीक है, लेकिन जो है क्या है ये, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट जो है क्या रखा है, सिंगुलर ही रखा है, भले सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन सब्जेक्ट जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, ओके। So students, you can read this, okay, and understand better. So you know that what is subject. Yes students, you see one summary here, subject and verb, okay. Subject means क्या होता है स्टूडेंट, subject means होता है कर्ता, उद्देश्य, means I am a teacher, okay. So I am a teacher, in this sentence I is the subject, okay. I जो है वो सब्जेक्ट है। तो मैं अगर पूछे कोई कि मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, तो जो है, या फिर टीचिंग कौन कर रहा है, तो मैं कर रही हूँ, आई कर रहा है, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। जो चीज़ों को करता है सेंटेंस में जो भी मतलब लिखा गया है, जैसे सीता पढ़ती है, तो मैंने बोला कि सीता क्या करती है,
तो आप बोलोगे क्या करती है, पढ़ती है। तो पढ़ना क्या हुआ, उसका जो है उसका काम हुआ, कि उसका काम है पढ़ने का। लेकिन कौन पढ़ता है अगर मैं पूछूं, तो आंसर में आएगा सीता पढ़ती है। तो सीता क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ओके। और जो है काम करने के लिए जिसको बोला जाता है, जो काम करता है, उसको हम बोलते हैं वर्ब। ओके। So students, let's finish this over these chapters. Now you have to do exercise in a next video. We have to send you question answer. Okay. Okay, thank you students. Bye bye.